the JEE paper video solution. This is third round of JEE. So I will be keeping this video solution as short as possible, and importantly this paper was very easy actually. So without wasting time, let's start with the first question. This is what the first question, where two mirrors are given, that is M1 and M2, where we have to find out the angle between two mirrors. So for this question you have to understand the important point, the ray which is emerged at parallel. As ray is emerging parallel, the arrangement is like this. So this angle and this angle are vertically opposite. So if you solve such a type of problem, you will get the parallelogram, and opposite angle of parallelograms are congruent. So instead of using these formulas, you can find out this is what 60, if it is 60. Why is it 60? Because this is total 180, this is also total 180, and this is 90. So remaining angle you can find out. So opposite angles are 60, so you will get the answer. Okay. Now next problem. This is what important problem, where you have to find out the x. X means the displacement of particle, the position of particle, displacement of particle, you have to find out. But condition is given, the potential energy is half of the kinetic energy. Potential energy formula half kx square. Omega is equal to under of k by m. Now potential energy is half of kinetic energy. This is potential energy half k x square. So you know omega is equal to under root of k by m. So put the value of k is equal to omega square into m. So now this is the value, actually put it. This is the value. Now this is the value. Now this is half kinetic energy, half mv square. V square, kinetic energy is omega square a square minus x square. It is a k, you know. This is the kinetic energy. This is half of kinetic energy. So now let's talk. Let's find out the value of x. This is the value of x from this equation. So potential energy is half of the kinetic energy. Is very important. So it was one of the easiest question. Now move to the next question. Just try to practice the more number of question. It is very important for cracking the any kind of exam. Though this is one of the common question. So find out the value. So you have to remember, B.B. Roy of Great Britain has very good wife with gold silver necklace. Remember this, because gold silver necklace has tolerance, having 5%, है ना, 50%, है ना, 15%, and कौन सा 5%, 10%, 20%. So this is what the no color. So this is the range you have to find out. Okay. So important question. Now you have to find out this is the mass 2 kg is given, the x is given, you have to find out the force. It is one of the easy question. Force is equal to mass into acceleration. So mass is given, you have to find out the acceleration. This paper was very easy actually. How to find the acceleration from displacement? So very easy. The differentiate 2 times. So you will get what? The acceleration. Now calculate the acceleration from this acceleration. So this is what the acceleration by differentiating 2 times, and this is what the mass. The force is equal to mass into acceleration. Simple. Okay. ये बहुत सिंपल है. ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत बार आएगा. यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स दिए होते हैं और वोल्टेज दिया होता है प्राइमरी सेकेंडरी का, तो आपको ट्रांसफॉर्मर रेशियो यूज करना होता है. क्या यूज ट्रांसफॉर्मर रेशियो? IS अपॉन IP इज इक्वल टू क्या होता है? IS अपॉन IP इज इक्वल टू EP अपॉन ES इज इक्वल टू NS अपॉन NP. तो उल्टा होता है जब वोल्टेज एंड करंट आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. सो पहले ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यूज करें और उसके बाद क्या निकाले? करंट की वैल्यू निकाले और उसके 90% निकाले, बस कुछ नहीं होता. ये ऐसा यूज करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ट्रांसफॉर्मर रेशियो इक्वेट करो. तीनों जो टर्म है ना, तो उसको इक्वेट करो. वोल्टेज दिया है तो करंट निकाल लें. चलो, ये ऐसी मेथड यूज करने की कोई जरूरत नहीं है. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं. ऐसे टाइप के क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आया करते, कि फिजिक्स में भी आया करते. तो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि इस टाइप के क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करें. यहाँ क्या दिया रहता है वो क्वेश्चन पढ़े. ACB ऐसा क्वेश्चन मैंने लिया है. ACB के प्रोसेस के थ्रू 60 जूल हीट सप्लाई की. हीट सप्लाई कितनी है? 60 जूल. तब वर्क डन कितना हुआ? 30. जब 60 जूल हीट सप्लाई की तो 30 जूल वर्क हुआ. तो मुझे बताओ जब हीट सप्लाई 40 किया तो फाइंड आउट वर्क डन. ये बहुत सिंपल है, बस पाथ चेंज हुआ है. यहाँ से आपने क्या फाइंड आउट करना है? जब हीट दी है, Q दिया है और W दिया है, इसका मतलब क्या फाइंड आउट करना है? डेल्टा U फाइंड आउट करना है. वो U कहाँ पुट करोगे? यहाँ क्या है? हीट दी है और U दिया है,
तो इसलिए क्या निकालोगे, W। बहुत सिंपल है, पहला इक्वेशन पहले पाथ के लिए यूज करें, पहला इक्वेशन Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा W। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाली सर, U की वैल्यू निकाली, U की वैल्यू निकाल के कहाँ पुट कर दी, यहाँ पुट कर दी, यहाँ हीट सप्लाई डी है तो वर्क डन निकल गया। बहुत सिंपल, क्योंकि देखो एक बार फिर से देखें, यहाँ क्या दिए Q, क्या 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 दिया है W, क्या निकाला U निकाला, वो U कहाँ पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया। ये क्या दिए सर, हीट दिया है, क्या निकलेगा सर, W निकलेगा। कितना निकलेगा, 10 जूल निकलेगा। आगे बढ़े, ये बहुत सिंपल था, इंटेंसिटी का रिलेशन दिया है, आपको पता ही होता है, आई मैक्स अपॉन आई मी A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, A1 A2 की जगह अंडर रूट ऑफ I1 I2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको। आगे बढ़े, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व करते जाइए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या बहुत सारे पेपर में, सैम्पल्स पेपर में मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, तो इस पॉइंट को आपने कॉमन पॉइंट मान लेना है और इधर 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 करंट निकालना होता है। दो सिंपली एक्सप्लेन करता हूं, एक पॉइंट को x माना हमने, यहां क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा कौन है सर, बड़ा कौन है सर 20 क्यों बड़ा है, क्योंकि करंट ऐसा जा रहा है, 20 माइनस एक्स अपॉन 2 रेजिस्टेंस, यहां का रेजिस्टेंस वोल्टेज अपॉन करंट। देखो ना ये देखो I क्या होगा, वोल्टेज माइनस अपॉन रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज क्या है 20 माइनस एक्स, यहां भी क्या 10 माइनस एक्स, इंपॉर्टेंट 10 माइनस एक्स डिवाइड बाय 4। लास्ट में एक बिल्कुल यहां चालाकी होती है, यहां से करंट नीचे आ रहा है इसलिए x माइनस जीरो, ना कि 0 माइनस एक्स, क्योंकि करंट नीचे आ रहा है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है x माइनस जीरो। अगर आप ये हाईलाइट करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ओके, और x की वैल्यू मिल गई तो I की वैल्यू मिल जाती है, बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़े, सो यहाँ आपको दिया है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, R रेडियस दी है, उसकी एक्सिस दी है, उसको फाइंड आउट करना है H की वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। सो फॉर दिस क्वेश्चन यू शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द ये जो लॉन्ग प्लेन शीट होती है, इसके सॉरी द सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, आपको पता होनी चाहिए। इसकी रेडियस R होती है, मैंने बोला था अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होता है, ऐसा कुछ आपने 11th में सीखा था। तो इसके वजह से जो फॉर्मूला है आपको पता होना चाहिए, क्या फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है बिल्कुल लर्न होना चाहिए। आगे बढ़े, देखो तो ये फॉर्मूला E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स अंडर अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। अब यहाँ क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिफॉर्म रिंग जो होती है उसमें E कभी चेंज नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज ऑलवेज सेम। सो चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो you differentiate it and equate it with 0, so you will get the value of x. The very easy question, but you have to find out, okay। तो ये x is what, the radius, then height is मतलब रेडियस होता है, जो कॉइल की रेडियस होता है ना उसको हाइट बोलते हैं। ओके, नाउ ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आए जाते हैं। कैपेसिटर के बेस पे एक क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं करना पड़ता है बेटा आपको, कैपेसिटर का फॉर्मूला C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन क्या होता है बेटा, D होता है। मुझे बता K की वैल्यू क्या दी है, K1 दी है, पुट करते जाना। D की वैल्यू चेंज हुई क्या, नहीं चेंज हुई, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हुई, सिर्फ K की वैल्यू चेंज हुई, ये वैल्यू पुट करते जाओ और हमारा फॉर्मूला रेडी। ये सीरीज में है कि पैरेलल में, कौन डिवाइड हो रहा है सर, एरिया डिवाइड हो रहा है। जब एरिया डिवाइड होता है तो पैरेलल, और डी जब डिवाइड होता है तो कौन होता है, सीरीज। मैंने आपको सिखाता है जब एरिया डिवाइड होता है, एरिया कैसे, प्लेट का एरिया, ये देखो प्लेट का एरिया डिवाइड हुआ, ए प्लेट था ना तो A/2 A/2 A/3 हो गया, ऐसे डिवाइड हो गया। जब एरिया डिवाइड होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट एडिशन होती है। अच्छा, जब एडिशन हुई तो हमने क्या कर दिया, सी की वैल्यू डाल दी कि एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, तो मैंने A/3 डाला, A/3 डाला, A/3 डाला क्योंकि A 3 भागों में डिवाइड हुआ। मुझे K की वैल्यू थी, K1 की वैल्यू दी है, अच्छा K2 की वैल्यू दी है, K3 की वैल्यू दी है, चमका दिया कि फाइनल आंसर मुझे मिल गया। ओके, आगे बढ़े, ये क्वेश्चन कुछ दिया। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं न्यूक्लियर रेडियोएक्टिव एलिमेंट से, ये ऐसे प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व करते जाइए, ऐसे प्रैक्टिस करें थोड़े थोड़े। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ही जनरली पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पूछा है कि द काउंट रेट ऑब्जर्व पर काउंट इज दिस। अब यहाँ काउंट रेट पूछा है तो यहाँ कैसे आपको ये बाकी चीज़ें, ये तो सब हमने पहले ही डिराइव कर लिया है। ये वाला फॉर्मूला मैंने उस दिन भी बताया था आपको, टू द पावर n वाला, टू द पावर n है। अगर 4 आने के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, n की वैल्यू 1/2, तो अभी तो 1/8 आएगा, n की वैल्यू क्या होगी 1/2। तो ये वैल्यू कंपेयर करें a से, ये n है, यहाँ a दिया है पर n है, n इज इक्वल टू n0 ई टू द पावर माइनस λ t। ये कंपेयर करो तो आंसर 200 आ जाएगा। इस टाइप के प्रॉब्लम जब तक आप देखेंगे नहीं आपको समझेगा नहीं क्या बता रहे सर। हाँ, अब देखो यहाँ कुछ चीज़ें दी है कि पहले का फ्लो दिया है, दूसरे का फ्लो दिया है, एरिया दिया है, आपको क्या हाइट पता करना, हाइट। तो ये किसके इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 और V इज इक्वल टू ड्रॉप 2GH, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 V इज इक्वल टू ड्रॉप 2GH। पुट कर दे, हाइट की वैल्यू मिल जाएगी। शाबाश, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़े,
ये डायमेंशन फाइंड आउट करना था। फोर्स इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, तो बीटा के डायमेंशन जब फाइंड करने अल्फा और बीटा के डायमेंशन फाइंड आउट करने, तो यू शुड अंडरस्टैंड ये किसके बराबर होगा, फोर्स के बराबर ही होगा। तो लॉजिकली आप समझे तो कंपेयर करें दोनों साइड को, जब दोनों साइड को कंपेयर करोगे, एक साइड में फोर्स के डायमेंशन, अगर अल्फा के डायमेंशन निकालो फिर अल्फा इंटू बीटा फोर्स है, तो बस बाकी कुछ नहीं। आपको पता ही है डायमेंशन वाले क्वेश्चन ना छोड़े बेटा, डायमेंशन वाले क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जेईई मेंस में 100% आएगा, नीट वाले भी ध्यान दे थोड़ा। ये इस टाइप के क्वेश्चन ना सॉल्व करने के लिए मैं ट्रिक बताई थी कि इधर एक फोर्स है तो इधर एक फोर्स है, दोनों फोर्स इक्वेट करें और दोनों फोर्स को इलॉन्गेशन से कंपेयर करें। जब आप दोनों फोर्स को इलॉन्गेशन के फोर्स से कंपेयर करेंगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी, उस चीज़ का नाम है द रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स ये इलॉन्गेशन फोर्स के बराबर रहेगा। ये दोनों चीज़ें समझ में आने लगी तो आप इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम की मेथड दी है ये आपको नहीं समझेगी, अगर आपको समझती है पहले ऑलरेडी सो वेल एंड गुड, बट मैं बोलूँगा ये फोर्स और ये फोर्स कंपेयर करें और इसको इक्वेट करें रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द क्या स्प्रिंग, इससे कंपेयर करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाती है किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, दैट इज व्हाट एक्स। ओके, द पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी दी है, टेम्परेचर दिया है, तो उसका इस टेम्परेचर पे ससेप्टिबिलिटी क्या होगा, सीधा फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालने वाली चीज़ है ये। कि आपको पता है कि ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी एट अपॉन 1, ये 2 लिया मैंने, ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो Chi1 अपॉन Chi2 T2 अपॉन T1 वैल्यू पुट कर दिया बेटा, आंसर इक्वेट कर दिया, बहुत सिंपल। एक बार फिर से देखो नहीं तो गायब हो जाओगे। ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ये कौन सा लॉ है बेटा, क्यूरीज लॉ है, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शाबाश। आगे बढ़े, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। अब ये डी ब्रोगलीज वेवलेंथ हेलियम एटम के लिए क्या होती है, मैंने बताया था सिंपल, लैम्बडा इज इक्वल टू 150 अंडर रूट ऑफ वोल्टेज, बस। कहाँ है क्या ऐसे ही, हाँ ये देखो, ये सॉरी 150 अपॉन एनर्जी। ये एनर्जी कैसे निकालोगे फर्स्ट स्टेज की, ये निकालना नहीं बेटा, एनर्जी याद ही रखो, 13.6 ये एनर्जी होती है फर्स्ट एक्सटाइटेड स्टेट की, आपको सबको लर्न है मुझे पता है। और लैम्बडा कैसे निकालना, 150 कहाँ से है मैंने बताया था, अल्फा की, बीटा की, गामा की और इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए कितना बताया था मैंने, 12.27 को किससे डिवाइड करते हैं, अंडर रूट ऑफ, वो भी ये सब चीज़ें याद रखें, अल्फा, बीटा, गामा और हेलियम की वेवलेंथ निकालने के लिए किससे ऊपर न्यूमरेटर में कौन होता है आपको पता होना चाहिए। मैंने बीटा के लिए लिख के दिया, नोट्स रेफर करें तो आपको ये समझ में आ जाए लगेगा वेवलेंथ किसकी कैसी कैसी निकाले। आ जाओ आगे बढ़े। यहाँ क्या पूछा है बेटा, मिनिमम पोजिशन ऑफ पार्टिकल डिस्क दी है, हैंग किया उसको, तो आपको क्या पता है, मिनिमम पॉसिबल टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बोलो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G। टाइम पीरियड ऑफ डिस्क, मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ डिस्क ये पूछा है। तो मुझे बताओ टाइम पीरियड किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ को। तो मुझे बताओ ये क्या सेंटर में है, नहीं है, तो यहाँ रेडियस R तो नहीं आएगी, पहला ऑप्शन तो रॉन्ग है। मुझे बताओ क्या दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, नहीं। क्यों नहीं हो सकता सर, क्योंकि ये 2 रेडियस 2R भी नहीं है, अगर ऐसे हैंग करेंगे तो ये R नहीं है, 2R से कम है, तो ये वाला ऑप्शन थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ओरली देख के देखो कैसे लॉजिकली समझे फिर से, ये पॉइंट कहाँ है बेटा, सेंटर में तो नहीं है, तो R तो होगा ही नहीं, क्योंकि अरे अंडर रूट ऑफ क्या होता है, T इज इक्वल टू 2 पाई L होता है ना, L क्या होता है यहाँ, L मीन्स द पॉइंट फ्रॉम विच वी आर हैंगिंग, तो यहाँ R तो नहीं है, इट इज लेस देन R। सो यही ऑप्शन करेक्ट लगता है। कैसी मेथड सॉल्व किया पता नहीं, हाँ आए तो यहाँ देखो ये अंडर रूट ऑफ R, ये मेथड की जरूरत नहीं है, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि द लेंथ इज ऑलवेज लेस देन रेडियस बिकॉज द पॉइंट इज नॉट एट सेंटर। ओके आगे बढ़े, चलो यहाँ बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना है आपको, L A R और ये तीनों का पावर इक्वेट करना है। तीनों का क्या करना है, पावर किसने दिया भैया, बैटरी ने दिया, किसको दिया सर, इंडक्टर को दिया, किसको दिया, रेजिस्टेंस को दिया। रेजिस्टेंस का पावर क्या होता है, I²R। चलो आगे बढ़े, तो पावर देखो, ये पावर V × I, ये पावर किसका, इंडक्टर का, ये पावर किसका, रेजिस्टेंस का। तीनों को पावर को इक्वेट किया मैंने, और तीनों पावर को इक्वेट करने के बाद में एक चीज़ बताता हूँ, ये ऐसी भी चीज़ करने की जरूरत नहीं है, अपने डायरेक्ट फार्मूला आपको पता है, मैंने e⁻, जो फार्मूला बताया था e⁻RT/L, जो बच्चे पता है इसको एक टाइम कांस्टेंट होता है करके, ये वाला फार्मूला जो है इंडक्टर के लिए, तो ये डिस्चार्जिंग के टाइम यूज़ होता है एट द स्टेडी स्टेट। ये डायरेक्ट फार्मूला जिसको लर्न है, तो ये बाकी चीज़ें डेरिवेशन है, ये करने की जरूरत नहीं। e⁻RT/L, तो यहाँ ये कंपेयर करेंगे हाफ से, तो आपको टाइम की वैल्यू ऑलरेडी मिल जाती है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और लॉग उस साइड लॉग आ जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल को कैंसिल करना है। तो यहाँ 1/2 है, सो यह लॉग ले ले, तो e⁻ है। ये एक्सप्रेशन आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, इसके ऊपर डिपेंड ना रहे आप, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको ये e⁻RT/L बताया था, RT इज टाइम कांस्टेंट, यहाँ बताया था मैंने सारी चीज़ें, C के बराबर होता है।
ठीक है, सिटी भी होता है वहाँ, तो आपको पता होगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको टी की वैल्यू लेनी पड़ेगी, दोनों साइड लॉग ले लो, ई कैंसिल हो जाएगा, तो आपको चीज़ें दिक्कत क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा पढ़ते रहिए। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मैंने बताया था वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक्स कैसे कैसे, इसमें बहुत बड़ा इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन यूज़ होता है। तो इसमें वेरिएबल यानी ये डाइलेक्ट्रिक जब चलता है, एससी वर्मा में भी लास्ट का प्रॉब्लम है, सिंगेज में भी हमने लिया था, मॉड्यूल में भी ऐसा प्रॉब्लम लिया था। ऐसे कैपेसिटर के प्रॉब्लम से रेफर करें, शायद ये आंसर आता है मेरे ख्याल से, आई डोंट नो एक्चुअली, बट ये प्रॉब्लम लंबे होते हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स डाइलेक्ट्रिक के, वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक्स वाले प्रॉब्लम सॉल्व करें, जस्ट रेफर द मॉड्यूल। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, पोटेंशियल बैरियर दिया है, आपको क्या निकालना है, वोल्टेज दिया है, रीजन दिया है, डिप्लीशन विड्थ, स्पीड दी है, क्या दिया बेटा, स्पीड। तो क्या निकालना है आपको, पी साइड में एंटर होने की स्पीड। तो ये ना बहुत, अभी ऐसा क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किया होगा शायद, कि एन साइड से पी साइड में कितनी स्पीड में एंटर होगा, कुछ लॉजिक नहीं भाई। लॉजिक क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एस। ए की वैल्यू दी होती है, एस की वैल्यू दी होती है, सब कुछ वैल्यू दी होती है, तुझे स्पीड निकालना होता है। ये देखो, इस फॉर्मूले से मत करो, मैं बताता हूँ, ये भी कुछ नहीं पढ़ना है। ये देखो, यहाँ फॉर्मूला, ये मैंने वहाँ से डाउटनेट से लिया है, तो देखो ये मैंने लिखना नहीं था बस इसलिए। तो आप देखो यहाँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एस होता है ना, वी स्क्वायर इज इक्वल, देखो ना, ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, ये देखो ना ये फॉर्मूला ट्वाइस एस, तो यहाँ ट्वाइस ए एस, यहाँ एस क्या है बेटा, द डिस्प्लेसमेंट, आपको पता ही है 2as। तो यहाँ ए की वैल्यू कैसा होगा, ए की वैल्यू क्या होती है, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कितना होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स Q बाई एम, देखो ना यहाँ ई, ये एफ इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स लगता है चार्ज पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, अपॉन मास वैसे ही रहेगा। अरे ये एफ इज इक्वल टू ई इंटू ई, फोर्स लगता है चार्ज में और मास वैसे का वैसे, ये उठा के एक्सेलरेशन की वैल्यू कहाँ डाली, इस इक्वेशन में। ये देखो यहाँ ये ए की वैल्यू यहाँ डाली, डी की वैल्यू डी की वजह से, यानी आपको लॉजिक नहीं लगाना इसमें, काइनेमेटिक इक्वेशन लगा के ए की वैल्यू निकालो भाई, वी की वैल्यू गिवन रहती है, बस बाकी कुछ नहीं, ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको समझ में आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, 2as, ए की वैल्यू कैसे निकाले, फोर्स पर, फोर्स कैसा होता है, ई इंटू ई, शाबाश, आगे बढ़े। ये कुछ आपको क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो ये किरचॉफ लॉ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। किरचॉफ लॉ अप्लाई करें, जैसे किरचॉफ लॉ अप्लाई करोगे, ये वोल्टेज अक्रॉस टू टर्मिनल, ई यहाँ दे, ई बैटरी, एल डी आई बाई डी टी होता है एल का, और ये आई आर होता है। तो कंपेयर किया मैंने, तो किरचॉफ लॉ से ये वैल्यू निकल गई, वोल्टेज बिटवीन टू टर्मिनल। सो ये कॉमन क्वेश्चन है, वन ऑफ द टाइम। मैंने जब इंडक्टर की स्टार्टिंग ली थी यही क्वेश्चन लिया था, मुझे अभी भी आते हैं। पार्टिकल दिया है, उसका डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड एक्स। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, जिसकी कंपैरिजन करनी होती है। ये डब्ल्यू किस 100 किसकी वैल्यू होती है बेटा, ओमेगा की, याद रखें, 100 किसकी वैल्यू है, ओमेगा की, याद करें। सो वी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। तो मुझे बताओ, यहाँ अगर आप लॉजिकली देखोगे, अगर समय शून्य की बात करूँ मैं, तो यहाँ कौन जीरो हो जाएगा, ओमेगा टी, तो क्या बन जाएगा हमारा, ए कॉस पाई बाई 6। तो इक्वेशन को कंपेयर करें, तो ओमेगा की जगह कौन दिया है बेटा, 100 दिया है। आ जाओ देखो ना, ओमेगा की जगह कौन दिया है, 100। एम्पलीट्यूड भी दिया है, एम्पलीट्यूड कितनी दी है बेटा, 20। अब एम्पलीट्यूड कितनी दी है, 20 दी। जब एम्पलीट्यूड 20 दी है, ओमेगा दिया है, सबकी वैल्यू पुट करो, कॉस पाई बाई 6 कितना है, √3/2। तो सबको पुट किया और चमका दिया, हो गया आंसर। क्योंकि यहाँ बोला t = 0, तो इसलिए मैंने t = 0 लिया, बस, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ लॉजिक नहीं लगा है। हाँ, ये क्वेश्चन हमने बहुत बार सॉल्व किया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, T1 इंटू टी, T1 + T2। सो ये वाला क्वेश्चन याद रखें हमेशा। ये क्वेश्चन जो टोटल टाइम होता है, टाइम पीरियड है ना, ये बिल्कुल याद रखें, टाइम पीरियड है ना, ये कॉमन क्वेश्चन है। अब उसके बाद बॉडी दिया है, वो ऑब्लिकली 21 से 30 के एंगल से भेजिए, उसका इनिशियल वेलोसिटी वगैरह दी है। सो आपको टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, 2u sin θ/g। तो इट इज़ वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चन। ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो एक फोर्स इधर है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर होगा, दोनों फोर्स को इक्वेट करें, हो गया आंसर हमारा। तो बस हो गया, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। सो फ्री बॉडी डायग्राम से आप कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते होंगे। ये फाइनल आंसर की है, बने रहेंगे, हम करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। सर ने जैसे प्रॉमिस किया कि आपको जेई की जो ऑल वीडियो सॉल्यूशंस है वो अवेलेबल कराएंगे। उसके बाद नीट के वीडियो सॉल्यूशन चालू होंगे, कर रहे हैं, सैप्स कोशिश कर रहा है जितना भी हो सके कि मैक्सिमम आप लोगों तक पहुंचाने की। एक्चुअली मुझे भी बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत सारे स्केड्यूल्स होता है, उसमें भी रिकॉर्ड करो और आपकी तरफ पहुंचाओ। पर कोशिश यही कि आपकी तरफ पहुंचाओ। यहाँ तक आपने वीडियो देखा 20 मिनट तक और यहाँ तक बने रहे, मैं थैंक यू, आई अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।
Stay tuned.